So now we will discuss the issues of income-based poverty measures. So issues in determining poverty based on income only, है ना? Monetary based. What are the issues? So basically क्या है कि अगर आप इनकम बेस्ड पावर्टी इनकम ही लेते हैं केवल पावर्टी मेजरमेंट के लिए, तो आप बहुत चीज़ें मतलब लॉस आउट कर रहे हैं. मीन्स यू आर मिसिंग आउट ऑन मैनी थिंग्स और यू आर losing out on many things. So poverty, so you can write poverty is not only about achieving economic success. Poverty or you can say removal is not only about achieving economic, but also, और इकोनॉमिक फैक्टर्स कह सकते हैं, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सोशल, कल्चरल, है ना, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, environmental factors, etc. So poverty not only depends on economic factors, but it also depends on these various factors which I have just jotted down. Okay. तो क्या है कि अगर आप पावर्टी केवल इनकम बेस पर डिटरमाइन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिटरमाइन किया कि भाई जिसका 30 रुपए पर डे से कम जो बंदा अर्न कर रहा है, दैट इज पुअर, एंड द पर्सन हु इज अर्निंग मोर देन 30 डजंट कम अंडर पुअर पावर्टी लाइन. ठीक है, बिलो पावर्टी लाइन. तो अब इसमें इशू क्या होगा कि अगर आप if the person is earning more than 30 rupees, so यहाँ पे क्या है ना, you are not focusing upon his expenditure. तो क्या एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, और whether he is fulfilling upon his needs or not, है ना, और कंजम्पशन बेस्ड. सो यू आर, और यू कैन से इनकम बेस्ड पावर्टी डिटर्मिनेशन loses out on consumption done by the people. Okay. So you can say the person, if he is focusing upon income based poverty measure, if you are determining poverty based on income only, so the person is, so whatever income he is getting, so what thing he is doing, means what expenditure he is doing with that income, you are not knowing that thing. So maybe he is not spending the money in a sufficient manner. ठीक है ना, sufficient manner में spend नहीं कर रहा, हो सकता है, तो he is losing out on consumption and living standard को ignore कर रहे हो आप पूरी तरीके से. Maybe his income is not improving upon his living standard, or ignoring the living standard. Consumption को भी ignore कर दिया. So income base ignores the consumption done by the person and ignoring the living standard also. We are ignoring the living standard of the people. Okay. So this is one of the issue, that you are ignoring the consumption.
because you are not taking into account the consumption basket of the people. So maybe if you are, even if you are getting some income, you are not spending that money in consuming the things which are required for your sustenance and for your livelihood, or for example, not for your food and non-food item, but if you are spending that thing in gambling or in alcoholism, that may be possible, है ना? So that may be possible that you are spending that money in, you know, prostitution or some other bad things, or in smuggling and all those things. So poverty, so if you are measuring poverty based on income only, then definitely you are ignoring various things, like you are ignoring the consumption basket of the person as well as the living standard. And next, what are the other issues there? अभी क्या है ना, हमारे देश में आप जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अराउंड 92% है अनऑर्गेनाइज्ड. अब क्या होता है, अगर आप इनकम बेस्ड पावर्टी मेजर लेते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इग्नोर हो जाता है. इट इग्नोर्स इनकम बेस्ड पावर्टी, ignores the unorganized sector. Unorganized and organized is 8%. Unorganized sector, unorganized समझते हैं ना, जो कि टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता, या फिर जो कि जो भी रूल्स है हमारे लेबर रूल्स, और जो भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो उसके अंडर में, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं आता, जिनकी एक रेगुलर इनकम नहीं होती. अब क्योंकि इनकी इनरेगुलर इनकम है, तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि बिकॉज दे आर गेटिंग इनकम फॉर एग्जांपल ओनली फॉर 5 months एंड रेस्ट 7 months दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयड. सो you have taken income of those 5 months. So if you are doing a survey, and in that survey you have seen that the person is employed and person is earning 40 rupees per day, so you definitely in that survey you can ignore that person, but it is possible that in the next 7 months he will be unemployed. So that person who is unemployed in the 7 months definitely should come under the poor, because poor poverty line, because he is unemployed during 7 months. So income based poverty ignore those sector which is based on irregular income, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इग्नोर कर देता है जिनकी रेगुलर इनकम नहीं होती, बिकॉज दोज पीपल दे आर अनएम्प्लॉयड फॉर मैनी मंथ्स और फॉर मैनी डेज, फिर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. सो देयरफॉर दिस income based poverty does not take into account the unorganized sector who have irregular income, therefore ignoring various, so whatever statistics and whatever figure it will come, the poverty poor people figure count, so that is definitely wrong, because it has ignored or misses out on many count of those people, actual poor people who actually need the support of government support via their welfare schemes, but because of the poor, you can say, because of the income based poverty measure, because you have taken the bad indicator of poverty measure, income based, you have missed out or you have ignored many people who are earning their income in unorganized sector. Okay, so we can say that the link between the poverty and the income is not linear in nature. You cannot say that the person who is earning less income is poor, or the person who is earning more income is not poor. Okay, and one more thing, one more point is there, that it may also be possible that there is under reporting of income.
by families. So it may also be possible that families may have reported to the surveying agency, underreported their income to the surveying agency. So for example, if they are earning 100 rupees per day, so they may have reported 50 or 40 rupees to utilize, to take advantage of the government welfare schemes voluntarily. Okay, so definitely it will produce error prone data, and those who are actual those who should get the benefit of the schemes, welfare schemes, those people definitely they may be out of the this list, and the persons who are not poor or who should not receive the welfare of these schemes maybe taken in the this poverty line, included in the poverty line as the poor. So because underreporting is there, so due to underreporting also of income by the families, the income based poverty measurement is produce error prone data, or there will be error. So in the last you can say that link between the poverty, the income and the living standard is not there. So it is not always there that if you are earning good income you have a good living standard. So due to these issues, because even if you are even if you have some income but you don't have political empowerment, you don't have social empowerment, you don't have psychological empowerment, you don't have political, psychological, social, cultural, environmental empowerment, these types of different empowerment, unless and until you don't have good living standard, or you don't have the fundamental rights to enjoy, to live a life full of dignity and life full of ease and with dignity, life full of dignity and welfare. ठीक है. So unless and until you are living that life, you cannot say that you are rich. So you can always say that if you are not living a life full of dignity, full of liberty, dignity, so you can say that you are poor. So this is a new definition of poverty line, which is being described by MPI, multi-dimensional poverty index. ओके, तो अभी बिफोर जंपिंग टू MPI मैं ये बता दूं कि इंटेंसिटी एंड इंसिडेंस, अगर हम इनकम बेस लेते हैं, इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इज काउंट ऑफ पुअर पीपल. तो ये सिंपल है कि अगर आप इनकम बेस लेते हैं तो द पर्सन हु इज अर्निंग लेस देन 30 पर डे, फॉर एग्जांपल, दैट विल बी काउंटेड एज पुअर, and greater than 30 per day not counted. Simple. और जो counted होंगे इनका sum is equal to count of poor people. And intensity, जो poverty line आपने बनाई है 30, तो कितना gap है? So if the person is earning 20 rupees, so gap is 10 rupees. If you are earning 17 rupees, gap is 13 rupees. So intensity of poverty is how much is the gap between the poverty line and whatever income you are having. So the gap. So intensity of poverty measures the gap between the poverty line and the income which the person is having. So incidence of poverty, it measures the count of the people, and intensity, it measures the gap. So whatever the gap is there, so it will calculate the aggregate value of the, so उसकी aggregate लेंगे of the gap. तो ये क्या करेंगे, जैसे ये 10 का गैप है, यहाँ पे 13 का गैप था, डॉट 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 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन्स, जो यहाँ पे काउंट आएगा, काउंट ऑफ पुअर पीपल.
तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, यानी कि कितना गैप है। तो इस तरीके से इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कैलकुलेट की जाती थी, और इससे पता चलता था कि कितने काउंट है पुअर पीपल का और इंटेंसिटी क्या है पुअर पीपल की, यानी कि कितना गैप है पॉवर्टी लाइन से। ठीक है, तो अब इसमें इशू क्या है? इशू जो मैंने आपको बताया, इशू यही था कि काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इग्नोर किए जा रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल इसमें इग्नोर्ड है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर इफ़ यू आर पुअर सो यू हैव ए गुड लिविंग स्टैंडर्ड, एंड इट इज एट मोस्ट रिक्वायर्ड दैट इफ without a good living standard, if you are not living a life full of dignity and liberty, definitely you will be considered as a person who is deprived माना जाएगा आपको। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? MPI। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये काफी सारे वो लेता है, इंडिकेटर्स कंसीडर करता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एजुकेशन में चाइल्ड एनरोलमेंट। ठीक है, एंड अनदर इज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो चाइल्ड एनरोलमेंट में क्या है कि बेसिकली इसमें ये देखते हैं कि हाउ मैनी चिल्ड्रन आर नॉट अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम क्लास 1 to 8। ठीक है, दिस इज चाइल्ड एनरोलमेंट। कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 1 to 8 में अटेंड नहीं कर रहे हैं स्कूल, एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज you are deprived if you have not completed 5 years of schooling। अगर 5 साल की स्कूलिंग आपने नहीं की है तो यू विल बी डिप्राइव्ड इन दिस इंडिकेटर। तो ये बेसिकली 2/6 इसकी वो है, वेटेज है, 1/6 इसकी, 1/6 इसकी। Then you have health. Health is nutrition, and this is child mortality, है ना? ठीक है, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। तो न्यूट्रिशन में बस यही है कि इफ द पर्सन इज माल नूरिस्ड, मतलब उसे प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो डिप्राइव होगा। कितने लोग जो कि माल नूरिस्ड हैं, इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी आपको पता ही है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। अच्छा, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी जो मैंने बताया था। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब चाइल्ड मरे हैं, चाइल्ड डाइड, एनी चाइल्ड डाइड बिलो द एज ऑफ 11 years। ठीक है, देन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें क्या क्या है? इसमें इसके भी 2/6, 1/6 इसका, 1/6 इसका। लिविंग स्टैंडर्ड का 1/6, सॉरी इट इज 2/6। ठीक है,
इसमें 6 है, तो 1/18, सारे 1/18 है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, हाउसिंग, then you have assets, then you have drinking water. तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, कुकिंग फ्यूल नहीं है, सैनिटेशन यानी कि टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, हाउस नहीं है यानी कि आपके पास फ्रिज, देन टीवी वगैरह नहीं है, और ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो ये सब 1/18 है सबके। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स लिए गए हैं। तो ये इतने सारे डायमेंशंस को लेके एमपीआई निकाला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एमपीआई में क्या होता है मैं आपको बता दूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किसको पुअर माना जाता है, पुअर उसको माना जाता है द पर्सन। सो ये क्या होता है ना, इसमें एमपीआई में ये इंडिविजुअल लेवल पे और हाउस होल्ड लेवल पे ये डेप्रीवेशंस कैलकुलेट करते हैं, डेप्रीवेशंस आइडेंटिफाई करते हैं और डेप्रीवेशंस आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे और हाउस होल्ड लेवल पे। अब मान लीजिए हम इंडिविजुअल लेवल पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस किस इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है। हम देखेंगे वो इंडिविजुअल को क्या एनरोलमेंट हुआ है उसका एजुकेशन में, स्कूल में, हाँ भाई हो गया, मान लो हो गया, तो यहाँ पे डिप्राइव्ड नहीं है। 5 साल की स्कूलिंग की है, नहीं 4 साल की है, अभी तक नहीं की, तो डिप्राइव्ड है। तो 1/6 मिल गया उसे स्कोर, 1/6 स्कोर ही हैज गॉट। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो 1/6 यहाँ मिल गया। तो सिमिलरली सब सारे इंडिकेटर्स देखे जाएंगे। तो अगर वो एनी 3 इंडिकेटर्स में, इनमें से कोई भी 3 इंडिकेटर्स में नहीं, एनी, सो इट इज 1/3, 1/3 इंडिकेटर्स में कोई भी 1/3 यानी कि 30%, अगर 30% इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड है वो, 30% इंडिकेटर्स में इफ ही इज डिप्राइव्ड, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो 1/3 मतलब 1/6 और 1/6, कोई भी 2 इंडिकेटर्स में अगर वो डिप्राइव हो जाता है, ठीक है ना, 1/3, सो इट इज 1/3, 2/6 यानी कि 1/3, सो 30%, मोर देन 30%। सो कोई भी 2 से ज्यादा इंडिकेटर्स में डिप्राइव होना चाहिए। तो यानी कि या तो इसमें हो गया और इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया, तो ही विल बी देन deprived, he will be taken as deprived, multidimensionally deprived, and he will be taken as multidimensional poor. So it is greater than 30%, and if it is greater than 50%, अगर 50% से ज्यादा है यानी कि 1/2, यानी कि 1/6, 1/6 and 1/6, so this is 1/2। तो कोई भी मोर देन 3 इंडिकेटर्स में डिप्राइव होता है, यानी कि मोर देन 3 इंडिकेटर्स में डिप्राइव होता है। अगर मोर देन 2 में होता है तो मल्टी डायमेंशनली, यानी कि 3 इंडिकेटर्स में डिप्राइव होता है तो ही विल बी मल्टी डायमेंशनली पुअर, एंड ग्रेटर देन 3 में होता है तो सीवियर मल्टी डायमेंशनली पुअर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो
अगर वो मोर देन 2 इंडिकेटर्स में डिप्राइव होता है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30%. सो अगर वो 1/6 एंड 1/6, तो मोर देन कोई भी 2 इंडिकेटर्स या उससे ज़्यादा में डिप्राइव होता है तो मल्टी डायमेंशनली पुअर. एंड अगर 1/2 यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा में होता है तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50%. सो ही विल बी काउंटेड एज सीवियर मल्टी डायमेंशनली पुअर. अब बेसिकली इसका एडवांटेज क्या है अगर आप इसको देखेंगे तो इसका एडवांटेज ये है कि आप देखेंगे कि एक ही पर्सन को डिफरेंट डायमेंशंस में देखा गया है कि जहां जहां पे वो लैग कर रहा है, यानी कि आपके पास डेटा आ गया कि वो किन किन इंडिकेटर्स में डिप्राइव है. इस इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है, इस इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रीवेशंस. ठीक है. सिमिलरली you can also calculate the deprivations at household level. हाउसहोल्ड लेवल मतलब हाउस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं सबका आप ये देखेंगे और उनका एग्रीगेट कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हैं कि दे आर मल्टी डायमेंशनली पुअर और नॉट पुअर, मतलब एक एग्रीगेट निकाल के. अब इसमें अगर आप इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी देखेंगे तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. इंसिडेंस, तो इसमें काउंट करोगे आप काउंट ऑफ मल्टी डायमेंशनली, तो जो भी कोई भी 2 में, ठीक है ना, पुअर है वो काउंट में आ जाएगा मल्टी डायमेंशनली पुअर. और इंटेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ डेप्रीवेशंस, कितनी डेप्रीवेशंस में, नंबर ऑफ डेप्रीवेशंस इन विच, नंबर ऑफ डेप्रीवेशंस, ठीक है ना, ऑफ द पर्सन हु इज काउंटेड एज पुअर. जिसको आपने पुअर काउंट किया है उसको कितनी डेप्रीवेशंस है. अब मान लो उसको 6 डेप्रीवेशन है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 फिगर आ जाएगी और काउंट में 1 आ जाएगा, यानी कि द पर्सन विल बी काउंटेड एंड इंटेंसिटी मतलब कितनी डेप्रीवेशंस है. तो इसका एडवांटेज क्या है, बेसिकली इसका एडवांटेज ये है कि इससे ये पता चलता है कि कितने डायमेंशंस में जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं वो कितने डायमेंशंस में डिप्राइव्ड हैं और उनकी इंटेंसिटी क्या है. ठीक है ना, यानी कि वो पर्सन डिप्राइव्ड है या नहीं है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी डेप्रीवेशन है. तो इससे इसका एडवांटेज ये है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे आप डेप्रीवेशंस निकाल सकते हैं. और इसमें क्या है ना, डुप्लीकेसी नहीं होती, नो डुप्लीकेसी. क्यों? क्योंकि कोई भी एक बंदे को आप ले रहे हो तो एक बंदा किन्हीं भी इंडिकेटर्स में डिप्राइव हो सकता है. ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि वो बंदा इन इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड है तो आपके पास डेटा आ गया उस पर्टिकुलर बंदे का, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे आप डेप्रीवेशन कैलकुलेट करते हो. ठीक है. और सिमिलरली ग्रुप लेवल पे आप कैलकुलेट करते हो डेप्रीवेशंस. जबकि जो हमने पहले देखा था उसमें आपके पास इंडिकेटर्स नहीं है, बस आपको ये पता चल रहा है कि इनकम या तो आपकी कम है या आपकी ज़्यादा है, आपको डेप्रीवेशंस नहीं पता चल रहे हैं. तो उसमें क्या होता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी बंदे को पुअर कंसीडर कर लिया पॉवर्टी लाइन, मतलब उसमें अपने सर्वे में, और पता लगा वो पुअर है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है वो किसी की इनकम उसकी कम हो बट उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, बट वो पुअर ना हो. आप इनकम जरूर कम है क्योंकि मे बी ही हैज सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो. आपने उसकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ले ली बट उसकी कुछ इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है. ठीक है ना, फैमिली में जैसे मान लीजिए उसको कहीं से पैसा आ रहा है, वो कहीं और इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम करके पैसा कमा रहा है, तो वो तो आपने कंसिडर ही नहीं की. वो हो सकता है वहां से पैसा कमा रहा हो, रेगुलर उसकी कम बेशक है बट इरेगुलर उसकी है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है. तो उसमें क्या होगा ना, एरर प्रोन डेटा है वो. और ठीक है, और उसमें क्या होता है ना, अब जैसे अगर आप देखेंगे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI, तो HPI में आप जब कैलकुलेट करते हो तो डिफरेंट डायमेंशन जरूर लेते हो आप. जैसे XYZ आपने डायमेंशन ली तो X
उसकी आप एग्रीगेट कैलकुलेट करते हो, वाई की, जेड की, कि इसमें डिप्राइव कितने लोग हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। इसमें डुप्लीकेसी हो सकती है, क्योंकि कोई पर्सन इसमें भी डिप्राइव हो सकता है और इसमें भी डिप्राइव हो सकता है, तो वो इसमें भी कंसिडर हो गया और इसमें भी कंसिडर हो गया, तो इट हैज द डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा। बट इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं हो सकती डेटा की, क्योंकि इस पे आप इंडिविजुअल लेवल पे ही कैलकुलेट करते हो डेप्रीवेशंस इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वहां पे एग्रीगेट डेटा आप लेते हो, अलग अलग इंडिकेटर्स का एग्रीगेट डेटा लेते हो और उसका फिर एवरेज निकाल के आप पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हो। बट इसमें बिकॉज यू आर टेकिंग द डेप्रीवेशंस एट इंडिविजुअल लेवल की आप डेप्रीवेशंस करते हो और फिर इंडिविजुअल लेवल की डेप्रीवेशंस को काउंट करके आप फिर उसका एग्रीगेट निकालते हो। यानी कि इसकी एक्स बंदे की डेप्रीवेशन ले ली, वाई की ले ली, जेड की ले ली और उसकी निकाली। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें इंडिविजुअल लेवल पे डेप्रीवेशन नहीं निकालते आप ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में। इसमें आप जो डेप्रीवेशन निकालते हो वो एग्रीगेट लेवल पे इंडिकेटर लेके उसके एग्रीगेट निकाल के आप डेप्रीवेशन निकालते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग यू आर टेकिंग द एग्रीगेट of the deprivation of the indicator. So in the indicator you are taking the aggregate value for each and every indicator. You are taking the aggregate value and taking out the average in HPI. So it has duplicacy of data. But in multidimensional poverty index you are calculating the deprivations at individual level, and an individual may have multiple deprivations, and in multiple indicators it has multiple deprivations. So you are counting all the deprivations of that individual and then taking out the average of all the individuals, and then calculating the taking out the aggregate and then calculating the average, and hence multidimensional poverty index avoids duplicacy of data. ठीक है। और क्योंकि ये इंडिविजुअल ग्रुप लेवल पे आप कर सकते हो, आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो, इससे ये ज़्यादा बेटर वो है, क्योंकि इसमें आपने इतने सारे इंडिकेटर्स लिए हैं जो डेफिनेटली आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर ए हेल्दी, हैप्पियर, प्रोस्पेरस लाइफ, एक गुड लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। इसमें आप देख लीजिए सोशल इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ वाले सोशल इंडिकेटर्स भी हैं। देन पॉलिटिकल इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ इसमें भी मिसिंग है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है। तो दिस इज सैनिटेशन, साफ सफाई। तो दिस इज एनवायरमेंटल हो गया, हाउसिंग भी चाहिए, कुकिंग फ्यूल भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ठीक है, एसेट्स चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए जो कि ज़रूरी है बहुत। उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन जो कि सोशल इंडिकेटर्स हैं, इन्वायरमेंटल भी है। तो उसमें पॉलिटिकल नहीं है ना, पॉलिटिकल नहीं है, देन कल्चरल नहीं है, सोशल भी है, साइकोलॉजिकल वेलबींग नहीं है इसमें, कि बंदे की मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ विंग भी देखी जानी चाहिए बंदे की, जो कि नहीं देखी जा रही है, ठीक है ना। तो कुछ इंडिकेटर्स मिसिंग है, बट कुल मिला के अगर एमपीआई को देखो तो बहुत सारे इंडिकेटर्स जो कि एक हेल्दी लाइफ के लिए चाहिए वो इंडिकेटर्स इसमें हैं। तो इसकी वजह से क्या है ना, जो हमारी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो प्रेजेंट पॉवर्टी लाइन जो मेजरमेंट है वो तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से ये करते हैं, जो कि 21% अराउंड आता है इनकम बेस पे। बट अगर आप एमपीआई के बेस पे अगर आप देखेंगे, जो कि एमपीआई रिपोर्ट में आया है, तो वो आया है 27.91% काउंट जो आया है, तो ज़्यादा है। तो उससे पता चलता है कि डेफिनेटली आपकी इनकम में भी ज़्यादा है, बट आप लिविंग स्टैंडर्ड आपका प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज नॉट लिंक्ड, सो पॉवर्टी इज नॉट लिंक्ड टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑल्सो, वो उससे पता चल रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट को तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से पॉवर्टी कैलकुलेशन ना करने की बजाय एमपीआई जैसा ही मेजर लेना चाहिए और उससे पॉवर्टी कैलकुलेट करनी चाहिए। दैट विल बी अ होलिस्टिक वे ऑफ कैलकुलेटिंग दी पॉवर्टी, और तब आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है ना, आप इंडिविजुअल ग्रुप लेवल पे आप तो पता लगा ही रहे हो कि पुअर पीपल कितने हैं, बट आप ये भी पता लगा रहे हो कि किस किस
इंडेक्स में, इंडिकेटर में ज़्यादा डेप्रीवेशन है, तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें ये भी पता चल रहा है कि फला बंदा कितने इंडेक्सेस में मल्टी डायमेंशनल पुअर है। उसके अलावा तो जिन जिन डायमेंशंस में ज़्यादा पुअर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी ग्रुप का, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का निकाल रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ये भी देख, जब आप इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, हर इंडिविजुअल का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे XYZ का, और आप देख रहे हैं कि X एजुकेशन में, हेल्थ में, Y एजुकेशन में, सैनिटेशन में, Z हेल्थ में, ड्रिंकिंग वाटर में, तो आप इससे ये भी निकाल पा रहे हैं कि जो डेप्रीवेशन है किस इंडिकेटर में ज़्यादा है, तो आप उस इंडिकेटर के ऊपर आप ज़्यादा मतलब अपनी स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग उस इंडिकेटर पे को फोकस करके कर सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। तो MPI डेफिनेटली हेल्प्स इन evidence based policy making as compared to calculating poverty based on income. That is why MPI is important, more important as compared to calculating income poverty on based on income. So that is why the incidence and intensity of poverty जो बोल रहे थे, that was more important in calculating poverty based on income. So that was important to measure poverty, but that was important, that was actually not important, that was previously that was important, but now you need to take into account the intensity and income intensity and incidence of poverty based on these multidimensional deprivations. ठीक है, तो आप इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एज अ मेजर टू कैलकुलेट द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, बिकॉज इट वॉज इम्पोर्टेंट some 10-20 years back, but now the government should change it to the MPI measure. ठीक है, आप इससे आंसर अपना एंड कर सकते हैं. With this I end my lecture here. तो अभी next question number 17 we will discuss. Okay, thank you.